My question was, from where did the peddler get the idea of the world being a rat trap? The peddler was earning his livelihood by creating rat traps of wire, which he got from begging or petty thievery. As the world had not been kind to him, so he also wanted to get unwanted joy, and he thought that the whole world was a big rat trap in which the riches and the joys and the materials were just like the baits being offered to attract the people. 2 value points, 2 short paragraphs, 2 marks you will get. First question has been answered. My second question is, why was he amused by this idea that the world is a rat trap? उसको amusement क्यों होती थी, खुशी क्यों होती थी उसको इस बारे में, उसका ये cherished pastime बन गया था. Why was he feeling so happy about this world being a rat trap? बिकॉज उसको इस साइकिल में इन्वॉल्व नहीं होना था और वो इन सब चीजों से दूर था. Very good, Chetan, that you are participating. Excellent. और भी बच्चे कोशिश करो. Rajveer, yes. Do you want to say something, Rajveer? Excuse me, ma'am. Yes, बेटा. Harleen. मैम आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है. अब जोर से आएगी. अब देखो मैं म्यूट करके और मैंने वो सेटिंग ठीक करी. Is it okay now? Yes, ma'am. Okay. So उसको क्यों अच्छा लगता था? जैसे कि चेतन ने कहा, he was amused by the idea that Harshit, yes बेटा. Because the world has never been kind to him, so that when he knew that the world is a rat trap and all people are trapped in it, he was very happy to see that. Very nice, very good. Because the world had never been kind, and that is why to think about the negativity of the world was giving him unwanted joy. UNWONTED. Okay, negative joy मिलता था उसको ये बात सोच करके, अच्छा जब वर्ल्ड ही पूरा रेड ट्रैप है. Okay, and he could see that there were some people who had already been trapped in it and some were circling for getting more and more materials because of the greed that the humans have in their hearts all the time. Next question है मेरा, did the peddler expect the kind of hospitality that he received from the crofter? क्या उसने ये सोचा था कि उसको ऐसी हॉस्पिटैलिटी मिलेगी जैसी उसको हॉस्पिटैलिटी क्रॉफ्टर ने ऑफर करी? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. अब हम वन वर्ड में तो नहीं आंसर कर सकते बच्चों. हरकीरत, आप इसको इलेबोरेट करो कि क्यों नहीं मिलनी, क्यों उसने सोचा था, यूजुअली उसके साथ क्या होता था और इस बारी में उसके साथ क्या हुआ? शिवम, यस बेटा. मैम यूजुअली ही वाज, उसके साथ इतना अच्छा बिहेव नहीं किया जाता था एज उसकी मतलब मे बी उसका बिहेवियर या उसका लाइफस्टाइल ऐसा था. Because he used to wear, he was a poor fellow who used to wear rags, was not clean enough, was having tramp manners, so he was all the time, he was kicked out by the star faces, because the world was also suffering, the people were also very unhappy, they never wanted to be kind to anyone because they themselves were not happy human beings. And then what happened, that the crofter was extremely hospitable. So somebody, Gurmeet Kaur, said that she also wanted to try. She can add how the crofter was so hospitable. How can you say that he went out of his way to be a very good host? मैम उसने उसे वेलकम किया और वो उसके लिए पॉरेज पॉट मतलब लेके आया जिसमें फायर पे उसने टोबैको रोल उसको सर्व किया और Majolis. मैम उसके लिए उसके साथ यस गेम खेलना चाहता था वो अपने लोनलीनेस दूर Majolis, करने के yes. लिए. और
और Also, मैम उसने उसे he अपने सारी loaded चीजें बता दी थी, अपने काओ के बारे में बॉसी, और कि वो क्या अर्न करता है, और उसके 30 क्रोनोर्स उसके उसमें पड़े हैं। very good, very nice, wonderful. Just Kamar also wants to say something. Yes, Just Kamar. मैम उसने उसको शेल्टर दी थी, इवनिंग मील्स दिए थे, टोबैको रोल दिया था, पॉरेज पॉट लेके आया था उसके लिए वो, और उसका कार्ड गेम्स खेली थी। Bajolis, card game name is Bajolis. Wonderful. And one मुझ- more point. मुझे और मैम उसको कॉन्फिडेंस देता था, वो दिया था उसने। शेयर करा था, सीक्रेट शेयरिंग करी थी जिसमें 30 crore. Very nice, 30 very और उसके पास थे। beautiful answers. Very nice. I am very happy. May God bless you. My next question is, why was the crofter so talkative and friendly with the peddler? वो इतना उसके साथ में नाइस होस्ट क्यों था? वो खुशबू, यस बेटा. खुशबू नहीं आंसर कर रहे हो आप? हरलीन 12A. Ma'am, because he was feeling very lonely without his wife, and when he got a chance, मतलब जब वो आया उसके घर पे, उससे पता लगा कि ऐसे कोई आया है इंसान जिसके साथ वो टाइम स्पेंड कर सकता है, तो उससे बहुत खुशी हुई कि वो अपना लोनलीनेस को दूर कर सकता है ऐसे बात करके। Very good, because he had no wife and children, and that is why he welcomed the person. And the मैं वो industrialization had काफी टाइम से अकेला रह रहा था वो स्टील फैक्ट्री में, और उसने कभी यानी काफी टाइम से कोई गेस्ट भी अटेंड नहीं करा था, तो उसने जब उसको देखा तब उसको काफी ज्यादा। very good. My next question number 5 is, why did he show the 30 crore to the peddler? समीर को बच्चे ने एक ने हैंड रेज करा था, वो कोशिश कर सकता है अगर चाहे तो. Why did he show the 30 crore to the peddler? क्रॉफ्टर ने क्यों दिखाए 30 crore? ताकि वो ये बता सके कि उसकी जो बॉसी थी, स्वीडिश काउ थी, वो काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी. Because he wanted to मैम share ताकि वो his बिलीव joy करा of सके। earning money. ओके, गुरसिमरन और दीपांशु ने भी आंसर करा था, जो कि चैट के अंदर भेजा, मेरे मिस हो गया मेरे से, सॉरी. और जो ये वाला आंसर है, वो वाला आंसर और कोई भी ट्राई करे बच्चा. दिस इज राइट. मैम उसमें इसलिए शो कर रहा है ताकि वो बिलीव करा सके पेडलर को कि मैं वेरी सच गुड, बोल रहा हूँ। very good, because when he was talking about the creamery giving him a lot of profit at that time, what happened that the peddler looked incredulous. He seemed that he was not believing him, and that is why the crofter took out his pouch from the window pane and showed 30 crore bills, notes, so that he was believed. Right? My last question for yesterday's lesson is, did the peddler respect the confidence reposed in him by the crofter? जो ये 6 में से समझ लो कि 1 क्वेश्चन तो आता ही है आपको एग्जामिनेशन के अंदर. हर्षित. No, the paddler did not respect the confidence reposed in him by the crofter. How can you say that? In fact, because he betrayed the crofter by robbing 30 kroners. Very good, very nice. इसके अंदर ये पूरी बात लिखेंगे ना कि both of them had been together for the night. The crofter had been so hospitable, giving him shelter, food, big roll of big piece of tobacco roll, even sharing his secrets, playing, amusing him by playing Majolis. But the peddler betrayed him and broke the window pane, took out 30 kronors, stuffed them in his pocket, kept the leather pouch back at its place, and went away. In fact, cheating the host. Can you hear me? I can, Kushbu, I can.
So can Khushbu begin the reading now? As he walked along, because I can hear Khushbu, so she should also participate. अर्श, आप कुछ बोलना चाहते हो बेटे? Ma'am, 30 crores is a big value. Yeah, 30 crore Swedish currency के अंदर is a big value. बात ये होती है कि when your grandparents were there as kids, at that time 100 rupees was a very big value. Right? Context Yes, जिसमें ma'am. लिखी जाती है स्टोरी, उस टाइम के हिसाब से पैसे की वैल्यू होती है. Lakshya Arora, very good that you tried. Very, very nice. Okay, बेटा, खुशबू begin कर बच्चे. As he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. जब हम गलत काम करते हैं तो जो उस गलत काम को करने की बिगिनिंग होती है उसमें बड़े हैप्पी होते हैं कि वाओ लुक आई हैव बीन एबल टू डू इट. सेम हुआ रैट ट्रैप पेडलर के साथ. वो जैसे मनी इन हिज पॉकेट के साथ वॉक कर रहा था, बड़ा खुश हुआ कि वाओ मैं कितना स्मार्ट हूँ. He realized, of course, that at first he dared not continue on the public highway, but must turn off the road into the woods. उसने ये बात को सोचा कि मुझे डेयर नहीं करना चाहिए, मुझे करेज ऐसी नहीं रखनी चाहिए कि मैं पब्लिक हाईवे पे चलूं, क्योंकि ऐसा ना होए कि कोई अब मेरे को रॉब कर ले, मेरे पैसे ले ले. मुझे कहाँ जाना चाहिए? मुझे जंगल में, वुड्स के अंदर अंदर से जाना चाहिए. During the first hours, this caused him no difficulty. जब उसने बिगिन करा जंगल के अंदर एंटर करके, बिगिनिंग वाज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल. Later in the day, it became worse, for it was a big and confusing forest which he had gotten into. जैसे जैसे दिन चढ़ता गया वैसे वैसे उसका डिफिकल्टी, उसका लेवल बढ़ता गया. What happened that it was a very big and confusing forest जिसमें कि वो गया था. He tried, to be sure, to walk in a definite direction, but the paths twisted back and forth so strangely. उसने सोचा कि मैं एक ही डायरेक्शन में ऐसे चलता जाऊंगा, पर बहुत ही स्ट्रेंजली जो रास्ते थे वो कोई इधर कोई इधर कोई इधर कोई इधर जा रहा था. बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ. He walked and walked without coming to the end of the wood, and finally he realized that he had only been walking around in the same part of the forest. वो चलता गया, वॉक करता गया, लेकिन वो एंड तक पहुंचा ही नहीं जंगल के. फाइनली उसने रियलाइज करा कि ओ माय गॉड, मैं तो इसी हिस्से में ही घूमता हुआ चला जा रहा हूँ. मेटाफोरिक कंपैरिजन है जिंदगी के अंदर. जब भी हम गलत काम करते हैं तो क्या होता है, इनिशियली हम बड़े खुश होते हैं कि वाओ आई हैव बीन एबल टू डू इट. बाय रॉन्ग मीन्स जब भी हम चलते हैं हम उस ट्रैप के अंदर फंस जाते हैं, हम उसी में ही घूमते हुए जिंदगी गुजार देते हैं. दमन, यस दमन. Daman, do you want to say something? Khushbu, please continue. Okay, ma'am. All at once he recalled his thoughts about the world and the rat trap. उसको एकदम जब वो फंस गया वहां पे जाके, उसको याद आ गया रैट ट्रैप, वर्ल्ड, उसकी क्या थॉट थी उसके बारे में. Now his own turn had come. अब आज उसकी अपनी बारी आ गई थी उस ट्रैप के अंदर फंसने की. He had let himself be fooled by a bait and had been caught. बेट थी उसके लिए 30 करोड़. उसने खुद जाके विंडो पेन स्मैश करके उसमें से 30 करोड़ निकाल के अपने आप को ट्रैप के अंदर फंसा लिया था. उसको समझ आ गया कि मैं खुद बेवकूफ बन गया. बाय आई हैव बीन फूल्ड बिकॉज आई गॉट अट्रैक्टेड. मेरे को बेट 30 करोड़ ने इतना अट्रैक्ट किया कि अब मैं इसके अंदर फंस गया हूँ, इस पूरे चक्कर के अंदर. The whole forest, with its trunks and branches, its thickets and fallen logs, closed in upon him like an impenetrable prison from which he could never escape. पूरा का पूरा जो फॉरेस्ट था
उसके अंदर जो बिग वाली उसकी ट्री की ट्रंक्स होती हैं और ब्रांचेस, उसकी झाड़ियां, थिकेट्स, उसकी लकड़ी गिरी हुई, फॉलन लॉग्स, वो सारे के सारे ऐसे उसके ऊपर क्लोज हो गए, जैसे कि एक ऐसी प्रिजन हो, जेल हो, जिसमें से बाहर नहीं निकला जा सकता, जो कि इम्पेनिट्रेबल हो। इम्पेनिट्रेबल विच कैन नॉट बी एंटर्ड। इम्पेनिट्रेबल अंडरलाइन करके लिख लीजिए, विच कैन नॉट बी एंटर्ड। और उसको लगा अब मैं इसमें जेल में, प्रिजन में इम्प्रिजन हो गया हूँ, कैद हो गया हूँ, अब मैं इसमें से कभी बाहर नहीं निकल सकूंगा। नेक्स्ट चाइल्ड, रेज योर हैंड्स, जो भी रीड करना चाहता है। नेक्स्ट बच्चा। मैम। हरलीन, पहले हरलीन फिर अश्मीत। Yes, ma'am. It was late in December. Darkness was already descending over the forest. डिसेंडिंग को लिखो कवरिंग। और अब लेट दिसंबर का टाइम था, विंटर सीजन था, अंधेरा पड़ चुका था। इट वॉज कवरिंग द फॉरेस्ट। जितनी ग्रीनरी होती है उतनी डार्कनेस थिकर होती है। अगर नहीं कभी भी रियलाइज करा, जो स्टोरीज होती हैं, तुम्हें ये आज ये जो सेल्मा लेगरलॉफ है अपनी स्टोरी में, शी हैज टेकन यू फॉर अ विजिट टू स्वीडन। स्वीडन के वो पार्ट के अंदर जहाँ पे आयरन ओर की माइंस हैं, जहाँ का लाइफस्टाइल आप सीख रहे हो, बिसाइड्स लर्निंग द स्टोरी। हरलीन। This increased the danger and increased also his gloom and despair. ग्लूम अंडरलाइन Finally, करके लिखो, सैडनेस, ग्लूम, सैडनेस, डेस्पेयर, मिजरी, क्योंकि डार्कनेस थी, दिसंबर ठंड का मौसम है, विंटर थी, इससे और ज्यादा डेंजर हो गया अंधेरा होने से। और जब डार्कनेस होती है तो जो हमारे मन की सैडनेस होती है, हमारी मिजरी होती है, वो भी हमें ज्यादा फील होना शुरू हो जाती है। finally, he saw no way out and he sank down on the ground, tired to death, thinking that his last moment had come. उसको अब रेड ट्रैप पेडलर को कुछ भी नहीं समझ आ रहा था कि कुछ कभी चेंज होएगा। वो क्या करा, बिल्कुल थक के, हार के, परेशान होके, he sank down on the ground. He was so tired, जैसे कि लाइफ अब उसकी लाइफ में खत्म हो गई है। That death is very near. उसको लगा मेरा लास्ट मोमेंट आ गया लाइफ का, अब मैं ना तो इसमें से कभी बाहर निकल सकता हूँ, ना ही मेरी लाइफ में कोई चेंज होएगा। But just as he laid his head on the ground, he heard a sound, a heart regular thumping. क्या करा, ऐसे लेट गया ग्राउंड के ऊपर। जब लेटा तो आवाज सुनाई दी, रेगुलर थंपिंग सुनाई दे रही है। किस चीज की? कि कोई आसपास यहाँ पर मिल है, आयरन मिल, जिसके अंदर कोई हैमर के साथ स्ट्राइक कर रहा है। उसकी आवाज उसके कान में सुनाई दे रही है। There was no doubt as to what that was. He raised himself. Those are the hammer strokes from an iron mill, he thought. उसको ये बात थंपिंग जो थी वो क्लियरली पता लग गई कि ये जो थंपिंग है ये हैमर स्ट्रोक्स हैं। हैमर हथौड़ा होता है, स्ट्रोक स्ट्राइक करना होता है। आयरन मिल में काम हो रहा है रात के टाइम, और उसकी आवाज, उसकी थंपिंग जो है वो मुझे सुनाई दे रही है। इसका मतलब यहाँ पर इस जंगल में भी आसपास कोई लोग होंगे। उसने क्या किया, अपनी सारी की सारी हिम्मत जुटाई। सम्मन करना इज गैदर करना, स्ट्रेंथ इज ताकत। अपनी सारी उसने करेज गैदर करी और क्या कर, गिरता पड़ता, स्टैगर इज ऐसे अनस्टेडी मैनर के अंदर मूव करना। वो जहां से आवाज आ रही थी उसी डायरेक्शन में चलना शुरू हो गया। हरलीन कंप्लीट कर दो इस पैराग्राफ को, उसके बाद में अश्मीत रीड करेगा। Okay, ma'am. There must be people nearby. He summoned all his strength, got up, and staggered in the direction of the sound. वेरी गुड हरलीन। Thank you, ma'am.
The Ramsjo ironworks, which are now closed down, were not so long ago. A large plant, A large plant with smelt. smelter, rolling mill, and forge अभी जो in the मेरी summertime. मेरी भी बारी आएगी Okay. ना। रामसिजो आयरन वर्क्स उस जगह का नाम है जिसमें फोर्ज है, जिसके अंदर फैक्ट्री है, जिसके अंदर मिल है, जो कि वैसे बहुत बड़ा वाला प्लांट क्लोज डाउन हो गया था। अब वो इतना लार्ज प्लांट नहीं था, अब छोटे वाले लेवल के ऊपर वहां पे काम होता था क्योंकि चीजें चेंज हो गई हैं। I told you in the beginning of the story, industrialization had taken place and that had brought a big change in the lives of a lot of people. उसमें स्मेल्टर था, रोलिंग मिल थी, फोर्ज, ये सारी चीजों से काम हो रहा था। आगे पढ़ो बेटा। In the summertime, long lines of heavily loaded barges and scows slid down the canal, which led to a large inland lake. And in the winter time, the roads near the mill were black from all the coal dust which sifted down from the big charcoal crates. तो क्या होता था जब समर्स होती थी, जब वो गुड वाला टाइम होता था, जब सारे अच्छे से सारा कुछ चल रहा होता था, उस जमाने के अंदर बार्जेस एंड स्काउज बोट्स हैं, उनको उसमें सामान डालकर स्लिड करके पानी के रास्ते से, कैनाल से भेजा जाता था थ्रू एन इनलैंड लेक। विंटर टाइम के अंदर लेकिन क्योंकि पानी फ्रोजन हो जाता है लेक्स के अंदर, इसलिए रोड यूज करी जाती थी जो कि नियर द मिल थी, और जो रोड होती थी वो सारी की सारी कोल के डस्ट से पूरी ब्लैक हो जाती थी। अरुणी अपना बंद करके रखो माइक। अरुणी मैं पढ़ूं? So what happened was कि जो कोल की डस्ट थी वो सिफ्ट करके छंट कर कहाँ से आती थी, वो रोड के ऊपर गिरती जाती थी। बिग बिग वाले चारकोल के क्रेट्स थे जिनमें सामान को ट्रांसपोर्ट किया जाता था, लेकर जाया जाता था। अश्मित कोई और बच्चे को चांस दो बेटा, नेक्स्ट पैराग्राफ। Who wants to read now? Okay. Jaspreet Singh, yes beta. Yes, ma'am. During one of the long, dark evenings just before Christmas, the master smith and his helper sat in the dark forge near the furnace, waiting for the big pig iron which had been put in the fire to be ready to put on the anvil. अब ये ऐसी ही एक डार्क इवनिंग थी, क्रिसमस से जरा सी पहले, और मास्टर स्मिथ और उसका हेल्पर अंधेरी वाली फैक्ट्री के अंदर, फोर्ज के अंदर, भट्टी के पास, फर्नेस के पास बैठे हुए थे। क्या करने के लिए? वेट कर रहे थे कि जो पिग आयरन है, आयरन की एक काइंड है, उसको आग के ऊपर, फायर के ऊपर रखा हुआ था। जब आयरन जो है वो हीट हो जाता है, फिर उसको मारते हैं, तभी वो शेप के अंदर आता है। और उसको क्या करते हैं, कहाँ पर? उसको एनविल के ऊपर रखकर उसको स्ट्राइक करा जाता है। किसी बच्चे ने हैंड रेज करा था, मैंने मिस कर दिया। बताओ कि कुछ पूछना चाहते हो? ओके, आगे बढ़ो बेटे। जसप्रीत। Every now and then, one of them got up to stir the glowing mass with a long iron bar, returning in a few moments, dripping with perspiration. Though, as was in the custom, he wore nothing but a long shirt and a pair of wooden shoes. क्या होता था कि जो पर्सन है जो काम कर रहा है, मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर, वो लोग क्या, उन्होंने
लॉन्ग शर्ट पहनी हुई है, पेयर ऑफ वुडन शूज पहने हुए हैं, और वो जो आयरन है जो कि ग्लो कर रहा है, उसको ग्लोइंग मास को आयरन बार से साइड चेंज करते जा रहे हैं। और जब वो जाते हैं फर्नेस के पास, चाहे दिसंबर मंथ है, चाहे बहुत ज्यादा विंटर है, डिस्पाइट दैट, क्योंकि वो फर्नेस के पास जाते हैं और वो पूरे के पूरे परस्पिरेशन स्वेट से भीग जाते हैं। परस्पिरेशन अंडरलाइन करके लिखो, स्वेट, ये उनका कस्टम था, उनका ये रिवाज था कि वो ऐसा वाला काम करने के टाइम लॉन्ग शर्ट पहनते थे और वुडन शूज पहनते थे। नेक्स्ट बच्चा, anyone who wants to read? Yes, ma'am. Yes beta, please read. Harmeet, Gurmeet. All the time there were many sounds to be heard in the forge. फोर्ज मिल है, हर वक्त मिल में किसी ना किसी चीज के चलने की आवाज जो थी वो आती रहती थी। The big bellows groaned and the burning coal cracked. हेलो, वहां पर फैक्ट्री के अंदर लगी हुई मशीन्स हैं जिनकी आवाज आती थी, ग्रोनिंग। The fire boy shoveled charcoal into more of the furnace with a great deal of clatter. जो फायर बॉय था वो क्या करता था, वो चारकोल को, जो एक भट्टी थी, भट्टी का ऐसे मॉ बना हुआ था, उसके मॉ माउथ के ऊपर वो चारकोल को डाल देता था। जब वो ऊपर उसके अंदर उस मॉ के अंदर डालता था तो उसमें से क्लैटर की आवाज आती थी। Outside roared the waterfall, and a sharp north wind wiped the rain against the brick tiled roof. विप्ड है, विप्ड, वाइप्ड नहीं है, वाइप्ड में WIPED होएगा बेटा। विप करना, हिट करना होता है। बाहर आवाज आ रही थी वाटरफॉल की, और साथ में तेज नॉर्थ हवा जो चल रही थी, जो कि लैश कर रही थी, विप कर रही थी, हिट कर रही थी। हवा रेन को किसके साथ में हिट कर रही थी? ब्रिक टाइल्ड रूफ के साथ में, क्योंकि बाहर एक तरह से तूफान के जैसा आ रहा था। नेक्स्ट बच्चा, लक्ष्य आप पढ़ोगे? Yes, ma'am. प्लीज बेटे। It was probably an account of all this noise that the blacksmith did not notice that the man had opened the gate and entered the forge. क्योंकि इतना नॉइज था मिल के अंदर, शायद इसी वजह से वहां पर जो मैन था उसने ये नोटिस नहीं करा कि क्या हुआ, वहां पर कोई किसी मैन ने एंटर करा है। मैन था पेडलर, जिसने की हैमर स्ट्रोक्स की आवाज को सुना था, तो वो जंगल में से इस साइड आ गया था जहां से लाइट नजर आ रही थी। वो आके और वो बिल्कुल ही फर्नेस के पास आके खड़ा हो गया। बेटा रीड प्लीज। Until he stood close up to the furnace. Surely it was nothing unusual for poor vagabonds without any better shelter for the night to be attracted to the forge by the glow of light which escaped through the sooty panes, and to come in to warm themselves in front of the fire. ओके, श्योरली वेगाबॉन्ड्स होते हैं बंजारे जो इधर उधर घूमते रहते हैं। पेडलर के लिए बहुत सारे वर्ड्स यूज करे हुए हैं, गेस्ट है, स्ट्रेंजर है, पेडलर है, और यहाँ पर वेगाबॉन्ड है। सो दिस वेगाबॉन्ड, बाकी के जैसे वाले वेगाबॉन्ड्स यहाँ पर आते थे जिनके पास रात गुजारने के लिए शेल्टर नहीं होता था, जगह नहीं होती थी, वो लोग अट्रैक्ट होते थे। फोर्ज की लाइट ग्लो करती थी, बाहर एस्केप करके लाइट निकलती थी, हालांकि सूटी पेन्स थे, सूटी इज स्मोकी पेन्स, उसकी विंडो के कांच है सारे के सारे। और वो क्यों आते थे अंदर? वो सिर्फ अपने आप को वार्म करने के लिए आते थे, रात गुजारने के लिए आते थे। मनप्रीत, आपने हैंड रेज करा, आप कुछ बोलना चाहते हो मनप्रीत? यस मैम, शार्प नॉर्थ क्या होता है? सॉरी बेटा, मैम शार्प नॉर्थ वेव्ड से पहले। कहाँ पर है बेटा, मुझे समझ नहीं आया।
शार्प wipe नॉर्थ the विंड है, शार्प नॉर्थ विंड है, वन मोर पैराग्राफ के पहले, जो बड़ी तेज चलने वाली हवा जो कि नॉर्थ की तरफ से आ रही है. okay, ma'am. यस बेटा, प्लीज कंटिन्यू. The blacksmith glanced only casually and indifferently at the intruder. इंट्रूडर होता है जो बिना किसी के कहे पूछे किसी